negotiations, and we have discussed financial and banking cooperation, and we have agreed that the payments will be made in the currencies of friendly countries. Thank you. Stressed, fraught, undermined, rendered effective as a result of hyper-partisan, hyper-polarized politics at home. سکتے ہیں دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو ورلڈ اکنامک فورم میں موجود ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. The world together, the institutional frameworks that channeled various different international views, but then sort of through the international institutions like the United Nations or other frameworks would come up with some sort of conclusion as a result, once again, of our hyperpartisanship, hyperpolarization. Those international institutions, those international normative frameworks, the way that we've been approaching the world has been fragmented, undermined, and as a result, we're seeing what we're seeing, both here in Europe, but also an increase in tensions everywhere. I don't think that the blame rests at any one country's door. I mean, I believe that whether it is sort of from the time of Iraq or otherwise, perhaps we ourselves also have undermined those international institutions. But whatever the reasoning, the old international order, the old normative order for us to for our dispute resolutions has clearly failed. And as a result, you now see the first war in mainland Europe after the Second World War, which has global consequences. What we would like to see is obviously a return to a more institutional, normative functioning internationally as well as domestically, so we could work together to solve issues. Here at WEF, I believe we're discussing, there's a lot of discussion about what the new world order will be, or how, even in the context of our new Helsinki, how do we work towards that new normative international order that allows us to address our differences and disputes as the civilized world. And I believe perhaps we are at the moment in such a hyper-partisan, hyper-polarized time that we're not going to be able to form that new Helsinki today. But I hope going forward we are able to do, I mean, we must form and improve our normative and international institutional order internationally so that we can address these complaints. I hope this time round, once we're building this new world order or new rules-based order, the voice of the global south and the developing world is included. Because we must understand that the way that the international order is constructed, whether it's international financial institutions or other international institutions, they were constructed by the West at the time of colonialism and when the world was a very different place. So to meet the challenges of today and in order to construct an order that has the buy-in of the international world, we do hope that the global South has their voices heard, has their perspective included. And if we do go down that path, where you have not only the global North but also the global South as stakeholders in a new international order, then there are higher chances that it'll be successful. I want to come back to that in a bit, but Representative Hartman, let me go to you. And while you have, I don't know if it's an easier or harder job of not having to officially represent your government here. If Free you could, at last. Exactly. But if we could bring in the U.S.-China dynamic as well, because I think that if we were sitting in Washington or Beijing, that would be so central to this conversation. Okay, I thought we were going to do a Eurocentric conversation, but that's all right. Let me first enthusiastically endorse the last comments that were made. And when we get to the end of this conversation and talk about a new world order, the global South is in the world, and I think we may have overlooked that a bit. Going back, I'd also point out Pakistan's origins, carved out of India and the colonial past of India. It's a big transition. But let me say one thing about the old Helsinki, because I actually went back and looked at what the tenets of whether it was unpopular or not, 3 tenets: inviolability of European frontiers, reject the use of force or intervention in internal affairs, and respect human rights.
Well, I don't think that framework is so bad, by the way. And it actually was sort of kind of observed for a while. I just want to make one point. नाज़रीन नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस वक्त तकरीब में वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो भी मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले वो गुफ्तगू कर रहे थे, सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के हवाले से बातचीत कर रहे थे कि इत्तेफाक करना चाहिए, मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो इस वक्त वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मौजूद हैं और तकरीब इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। बिलाल भुट्टो ने कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना भी है। इस मौके पर आपको बताएं कि बिलावल ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौके पर मौजू पर उमूर पर मिलकर चलना होगा। जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो ज़रदारी का सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर खिताब अब से कुछ देर पहले नशर किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में गुफ्तगू सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस वक्त ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, ये मनाजिर हैं वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के। तकरीब इस वक्त जारी है जबकि सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर सेमिनार इस वक्त जारी है जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर अब से कुछ देर पहले खिताब भी किया गया, जिसमें वज़ीर ख़ारजा ने कहा And participate in the vote. Well, we all remember, or it is still true, I guess, the OSCE is a consensus organization. Russia is a member of the organization. He was in Ukraine at the invitation of the OSCE. Russia at that point already was destabilizing some of the towns in the Donbass. But the election was conducted. It was a fair and free election, and imperfect as it was, that was in the recent past. So I just put that out there to contemplate. Yes, the world is different, and yes, Russia has violated every single tenet of the Helsinki Accords. But when we come back to this, I just want to put out there that maybe there's no way to go back, but if we go forward, those tenets still seem pretty good to me. On U.S.-China, I think we're going to talk a lot about Ukraine, but I think China is watching carefully, very carefully, what happens in Ukraine. And I think it is plausible, everyone discusses this, that China will model what action it takes on Taiwan based on what it thinks the rest of the world was ready to do, did do, will do in Ukraine. And I personally think that the stronger we are in Ukraine, the less likely it is that China will move into Taiwan. And I would put a few more things on the table now for future discussion. One is that China's economy ain't great. Two is that the COVID policy has failed in China. Three is that China even announced that there is a negative birth rate now. And by the नाज़रीन आपको बता नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं तकरीब जारी है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की। वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो भी इस तकरीब में मौजूद हैं जबकि सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। मसाइल के हल के लिए दुनिया को साथ मिलकर चलना होगा। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है जबकि तीसरी दुनिया की मईशतें ज़्यादा दबाव में हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से इस फोरम पर मसाइल की निशानदेही की गई है। वज़ीर ख़ारजा इस वक्त मौजूद हैं जबकि अमरीकी मंदूब, रोमानिया और सिल्वेनिया के वज़राए ख़ारजा भी इस सेमिनार में मौजूद हैं। इस वक्त तकरीब जारी है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर सेमिनार जारी है। वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो भी शरीक है। तीसरी दुनिया की मईशत दबाव का शिकार है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से इस मौके पर मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए गए हैं। मसाइल के हल के लिए दुनिया को साथ मिलकर चलना होगा जबकि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है जिसका सामना भरपूर तरीके से मिलकर ही हो सकता है। इस मौके पर आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं जबकि अमरीकी मंदूब, रोमानिया और सिल्वेनिया के वज़राए ख़ारजा भी इस मौके पर मौजूद हैं। तकरीब में सेमिनार इस वक्त जारी है जबकि वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं। तकरीब में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इस वक्त जारी है और वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे। सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है और सेमिनार इस वक्त जारी है जबकि सेमिनार में मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा भी मौजूद हैं। अमरीकी मंदूब, रोमानिया और सिल्वेनिया के वज़राए ख़ारजा भी इस तकरीब में मौजूद हैं।
जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गुफ्तगू में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर खिताब भी किया, जबकि इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल को उजागर भी किया। मसाइल के हल के लिए दुनिया को साथ चलना होगा। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस का सामना भी है, जबकि तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मसाइल को उजागर किया गया है। Both the causes of the war, the fault in the war, and the consequences of the war in Europe and the United States. You have a somewhat different view on it. Tell us what the war looks like from where you sit. Look, I think as far as support for international law, for the United Nations, for UN Security Council resolutions, I think I have a very similar view to everybody sitting on the stage. As far as the human tragedy, the humanitarian crisis, the loss of life, I think we all share exactly the same view. As far as the economic consequences or the knock-on ripple effects of this colossal tragedy has had not only in Europe, but not only in the West, but all over the world. Gas prices have gone up in America, but they've also gone up in Pakistan. We've had food security, energy insecurity issues. I think the perspective that we come to, particularly from the South perspective, is that we don't see the Ukraine conflict as the first and only time that international law and the United Nations Security Council resolutions have been violated. We find it ironic that the UN applies in Ukraine but not in Iraq. We find it sad that the United Nations Security Council resolutions that mean so much to all of Europe and all of the West right now mean nothing more than the paper that they're written on when it comes to the case of Kashmir. So I think that from that aspect our perspectives are different. As a country that just we were part of the last forever war, our hope, our prayer is that this does not turn into the next forever war. So perhaps more so than those who were directly involved in this conflict, we hope that it is resolved sooner rather than later. We'd like to see a more proactive approach from both sides to also pursue diplomacy in the pursuit of peace, while absolutely having to respond to the military elements of this conflict. I believe that diplomacy is the key thing that is missing, and what I would say to my Ukrainian friends would be that, NATO was in my neighborhood too, and we thought that they would be there till the last terrorist and until that war was concluded, and ultimately that conflict was resolved around a negotiating table. I feel we wasted much time because back in 2002 the Afghan Taliban were willing to surrender and negotiate, but we did not take that opportunity seriously and ended up having to do the same thing in 2022. I hope that eventually the space is created for some sort of dialogue and diplomatic engagement in order to resolve the conflict. Mr. Fayoum, I'd like you to respond to that, but also to give your sense of what's at stake in Ukraine as you see it. I can say that I, in a way, very much agree that there is a lot of hypocrisy around the globe, what basically the minister from Pakistan was saying between the lines. And also, when you said वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे। सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जबकि मसाइल के हल के लिए दुनिया को साथ मिलकर चलना होगा। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुख्तलिफ उमूर हैं जिन पर गुफ्तगू की गई और मसाइल की निशानदही की गई। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। तीसरी दुनिया की मईशत दबाव का शिकार है, जबकि दुनिया भर में पेट्रोल गैस बहरान महंगाई का एक तूफान है। ये निशानदही भी की गई है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, जबकि महंगाई ने मईशत तबाह की हुई हैं।
फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा दुनिया भर का मसला है। ये मसले उजागर किए गए हैं बिलाल भुट्टो सरदारी की जानिब से, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मौजूद हैं। आपको ये भी बताएं कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जबकि पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी और तवानाई के मसाइल भी दरपेश हैं। बिलाल भुट्टो सरदारी की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया है। इस मौके पर अमरीकी मंदूब और दीगर वज़ीर ख़ारजा भी मुमालिक के मौजूद हैं। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो की जानिब से मुख्तलिफ मसलों पर निशानदही की गई है। अमरीकी मंदूब रोमानिया और सिल्वेनिया के वज़ीर ख़ारजा भी इस तकरीब में मौजूद हैं, जबकि अपनी अपनी राय से आगाह कर रहे हैं। यूक्रेन जंग का असर एक मुल्क पर नहीं पूरे खित्ते पर पड़ा है। बिलाल भुट्टो की जानिब से इन ख्यालात का भी इजहार किया जा रहा है। सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस वक्त सेमिनार जारी है। अमरीकी मंदूब रोमानिया और सिल्वेनिया के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं, जबकि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर मुकालमा किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए हैं। बिलाल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को साथ मिलकर चलना होगा। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। तीसरी दुनिया की मईशत दबाव का ज़्यादा शिकार है, जबकि दुनिया भर में पेट्रोल गैस बहरान भी पैदा हो चुका है। महंगाई भी आसमान से बातें कर रही है। महंगाई ने मईशतें तबाह की हुई हैं। फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस मौके पर मुकालमा किया गया है, जबकि बिलाल भुट्टो ने मुख्तलिफ मसलों की निशानदही की है। To really make or improve our state of the world. Mr. Rescue, would also like you to respond, but also to talk about how you see the stakes in Ukraine and what the outcome of this war will mean for both Europe and international order. Well, I think when we discuss about diplomacy and the role of diplomacy in the context of the war in Ukraine, we have to be very much aware of the premises, because what is at the basis of the whole thing? When we approach this situation, we have to be very aware of the fact that there is a victim of aggression and an aggressor. This is the starting point of the whole discussion about peace, about diplomacy towards peace in Ukraine. And we have to be very clear about that. Ukraine is the victim of the aggression, and Russia is the aggressor. Ukraine has suffered territorial losses which are the result of a breach, a serious. वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं मनाजिर। तकरीब इस वक्त जारी है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो ने भी गुफ्तगू की है। सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। अमरीकी मंदूब सिल्वेनिया और रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं। मसाइल के हल के लिए दुनिया को साथ मिलकर चलना होगा। इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, जबकि बिलाल भुट्टो सरदारी ने मुख्तलिफ मसलों की निशानदही की और कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस का भी सामना है। तीसरी दुनिया की मईशतें ज़्यादा दबाव का शिकार हैं, जबकि दुनिया भर में पेट्रोल गैस का बहरान भी पैदा हो चुका है, जबकि महंगाई भी आसमान से बातें करने लगी है। महंगाई ने मईशतें तबाह की हुई हैं। फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। इस वक्त गैस की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा देखा जा रहा है। बिलाल भुट्टो सरदारी की जानिब से इस मौके पर मुख्तलिफ मसलों की निशानदही की जा रही है। मुकालमा इस वक्त जारी है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में। आप देख सकते हैं वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो भी मौजूद हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में गुफ्तगू कर रहे हैं। सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। अमरीकी मंदूब रोमानिया और सिल्वेनिया के वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की है और मुकालमा इस वक्त जारी है। रूस यूक्रेन तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी ही है। बिलाल भुट्टो की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के हवाले से मुकालमा जारी है, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो भी शरीक है। वज़ीर ख़ारजा ने दुनिया भर के मसाइल को उजागर किया है, जबकि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से भी चलना होगा, तजवीज़ भी दी गई है। बिलाल भुट्टो सरदारी ने कहा कि तीसरी दुनिया की मईशतें ज़्यादा दबाव का शिकार हैं, जबकि
दुनिया भर में पेट्रोल और गैस का बहरान पैदा हो चुका है। पेट्रोल और गैस की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ चुकी हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मईशतें तबाह हो चुकी हैं। फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला पैदा हो चुका है। यही नहीं, दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस का भी सामना है और पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी और तवानाई के मसाइल दरपेश हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर निशानदही की गई और अमरीकी मंदूब रोमानिया सिल्वेनिया के वज़ीर ख़ारजा भी इस मुकालमे में मौजूद हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर मुकालमा हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हैं, जबकि रूस और यूक्रेन के मामले को भी उजागर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मशवरे भी दिए गए। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है, जिसका मिलकर ही हल निकाला जा सकता है। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये भी कहा गया है, जबकि मुख्तलिफ मसलों की निशानदेही की गई है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, जिसमें दुनिया भर में तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं। ये बावर करवाया गया है बिलावल भुट्टो की जानिब से। मुकालमे में दुनिया भर में पेट्रोल गैस का बहरान पैदा हो चुका है। गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, जबकि यह भी कहा गया कि 2022 में अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया, रूस यूक्रेन तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस तकरीब में मौजूद हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इस वक्त जारी है और दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। बिलावल भुट्टो की जानिब से मुकालमा किया गया और मुकालमे में ये बावर करवाया गया है कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिसका हल वाहिद हल मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा, जबकि खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए मस्बत सोच। Say your objective is every inch of territory back in the hands of the Ukrainian people. It's some sort of NATO Article 5. Is it not even worth trying to achieve those same objectives through dialogue? Surely you can achieve those objectives through war and through conflict, but you could try to achieve them around the negotiating table. What's the worst that could happen? You'd fail and go back to war. But if you do manage to reach a consensus that covers all your concerns, but addresses some of the anxieties that the opposing sides might have, surely that's worth trying. From a perspective of a country that honestly just went through 20 years of conflict, who personally, I was on the side of this isn't over until we defeat every single last extremist or terrorist, and then the way I saw those events ultimately unfold, I would always advise, and this is constructive, friendly advice from somebody who's on your side, that while I understand the seriousness, the gravity, the challenge to Europe, I mean, I studied in the British system. I mean, we all grew up learning about World War II and all the aftermath and how much that must mean for everybody within Europe. I fail to understand why we can't simultaneously have some serious, responsible international players also trying to pursue a diplomatic resolution to a conflict. Minister Fayon. Yeah, I just wish to continue on that point because I fully agree it's surely worth trying. आपको बताते चलें वज़ीर इकनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर मुकालमा जारी है। बिलावल भुट्टो भी इस तकरीब में मौजूद हैं, जबकि अफसोस है कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें महज कागजी रह जाती हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की गई है और इस फोरम पर यह भी कहा गया कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत चैलेंजेस का सामना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यह भी कहा गया है कि तीसरी दुनिया की मईशत दबाव का शिकार है, जबकि महंगाई ने मईशतें तबाह कर दी। फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला पैदा हो गया है। अमरीकी मंदूब रोमानिया और सिल्वेनिया के वज़ीर ख़ारजा भी तकरीब में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर मुकालमे में ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर मुकालमा इस वक्त जारी है, जिसके मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। बिलाल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं, जबकि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस का सामना भी है। दुनिया भर में पेट्रोल गैस बहरान महंगाई का एक तूफान है। महंगाई ने मईशतें तबाह की हुई हैं। फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला पैदा हो चुका है। पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी और तवानाई के मसाइल दरपेश हैं। बिलाल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस मौके पर कश्मीर के इशू को भी उजागर किया गया और ये वाज़े कहा गया, जबकि यूक्रेन जंग का असर एक मुल्क पर नहीं पूरे खित्ते पर पड़ा है। बिलाल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस मौके पर यह भी वाज़े तौर पर बताया गया है। जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मौजूद हैं। मुकालमा इस वक्त जारी है। रूस यूक्रेन तनाज़े का वाहिद हल सिफातकारी है। बिलाल भुट्टो जरदारी की जानिब से तजवीज़ भी दी गई है। अमरीकी मंदूब रोमानिया और सिल्वेनिया के वज़ीर ख़ारजा भी इस मुकालमे में मौजूद हैं। बिलाल भुट्टो ने कहा कि 2022 में अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए गए। ये भी कहा गया है कि खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए मिलकर काम करना होगा, जबकि सितम ज़रीफ़ी यह है कि यूक्रेन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होता है। बिलावल भुट्टो की जानिब से कश्मीर के मामले को उजागर किया गया और दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यह भी कहा गया, अफसोस है कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मगरिब के लिए महज कागजी रह जाती हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये इजहार ख्याल किया गया है। यह भी कहा गया कि सितम ज़रीफ़ी यह है कि यूक्रेन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल हो जाता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर मिलकर चलना होगा। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार भी किया गया है। When colonialism was more of a reality. Many of the countries that existed today did not exist at the time the structure was set into place. I believe that the international order can only be empowered if were the inputs of Africa, Asia, China, India, the entire globe represented in this so-called order. And if you have the buy-in of everyone, then there's more of a chance of it to succeed. That everyone will also have to be those that you don't agree with. It would mean that we would have to compromise, others would have to compromise, but a truly successful system will be just that, a compromise that we could reach together. Minister Fayyad, let me go to you because you have endorsed this idea of bringing in, a new set of voices of the system. What to you would that change about the order in the system as it exists currently? I was just thinking now when you say, can we compromise only with the existing rules we have in a political atmosphere or in a political setting without including big business and corporations that are working globally across the national borders and interests. So that really we have to look into this new reality we have today and also adapt with our rules to this new reality. But we have United Nations, and I strongly believe we have to reform United Nations. There is an ongoing discussion, but I think we have to put also more focus on regional organizations. I was recently नाज़रीन वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी नाज़रीन इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के हवाले से मौजू पर सेमिनार जारी है। अमरीकी मंदूब सिल्वेनिया और रोमानिया के वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद हैं। मसाइल के हल के लिए दुनिया को साथ मिलकर चलना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूक्रेन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि यूक्रेन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल हो रहा है, जबकि बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि कश्मीर के मामले पर अमल नहीं होता है, जबकि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर मुकालमा इस वक्त जारी है, जबकि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से इस मौके पर मुकालमे में गुफ्तगू की गई और अमरीकी मंदूब रोमानिया और सिल्वेनिया के वज़ीर ख़ारिजा भी इस तकरीब में शरीक हैं, जबकि तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही भी की गई है। यह भी बताया गया है कि तीसरी दुनिया की मईशतें ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। गैस की कीमतें आलमी सतह पर पहुंची हुई हैं।
वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। अमरीकी मंदूब सल्वानिया और रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो ने मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की है। कश्मीर के इशू को भी उजागर किया गया है, जबकि वाज़ेह तौर पर यह भी बताया गया कि तीसरी दुनिया की मईशतें